Hello students, good morning. Welcome to SS online classes. Students, today it's a computer turn, so we will read today computer. And since we have completed chapter 2, knowing windows of our Adrian Man Fun with Computers book in our last video. And students, today we are going to start a new chapter of our Adrian Man Fun with Computers book. And students, the number of this new chapter is chapter 3 and the name of this chapter is More on Paint. Okay, so students, today we will read chapter 3 More on Paint in our today's class. And students, included is chapter 3 More on Paint. Our topics are which we will read in this chapter 3. students, our first number topic is to type text in paint. It's mean कि paint में text type करना. Okay, and students, our second number topic is to flip ऑब्लिक रोटेट एन इमेज. इट्स मीन कि एक इमेज को, एक चित्र को रोटेट करना, उसे घुमाना या उसे फ्लिप करना. फ्लिप करना इट्स मीन होता है डिलीट करना, हटाना. क्लियर. एंड स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर टॉपिक इज टू स्क्यू ऑब्लिक रिसाइज एन इमेज. इट्स मीन कि एक इमेज को रिसाइज करना, उसके साइज को परिवर्तित करना, बदलना. ओके, या उसे स्क्यू करना. एंड स्टूडेंट्स, ऑफ फोर्थ नंबर टॉपिक इज टू लिस्ट एंड यूज द शॉर्टकट की टू फ्लिप, रोटेट, रिसाइज, स्क्यू. ओके, इट्स मीन कि फ्लिप करने के लिए, इट्स मीन डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए, रोटेट करने के लिए, इट्स मीन घुमाने के लिए, रिसाइज करने के लिए, इट्स मीन साइज को चेंज करने के लिए या स्क्यू करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करना. ओके, एंड स्टूडेंट्स, ऑफ 5 नंबर टॉपिक इज टू इन्वर्ट सिलेक्शन ऑफ एन इमेज. एक इमेज के, एक चित्र के सिलेक्शन का इन्वर्ट करना. एंड स्टूडेंट्स, ऑफ लास्ट 6 नंबर टॉपिक इज टू क्रॉप एन इमेज. इट्स मीन एक इमेज को, एक चित्र को क्रॉप करना. क्रॉप मीन्स उसे कट करना. ओके, काटना. So students, we will read all these topics included in chapter 3 More on Paint. Okay, and students, today's our topic is to type text in paint. So we will read today first number topic, to type text in paint in our today's class. And included this topic we will read introduction, which is page number 29, and after it's we will read how to draw Diwali scene. It's mean today we will learn that how can we draw Diwali scene on a computer. And after it's we will read and solve exercise B, which is page number 40 of this chapter 3 in our computer book, Adrian Man Fun with Computers book in our today's class. So all students, please pay special attention in class and listen to my words clearly, because today we are going to read introduction, and after it's we will learn that how can we draw Diwali scene on a computer, and last we will read and solve exercise B of this chapter 3 in our computer book. Okay, so all students, firstly look at this page number 29. Okay, let's see chapter 3. Chapter number is chapter 3. The name of this chapter is More on Paint. Okay, let's see introduction. Introduction, it's mean परिचय. You have learned how to draw and paint pretty pictures in paint in the previous classes. You have learned, it's mean आप सीख चुके हैं how to draw. Okay, कि कैसे बनाया जाता है, and paint, कैसे पेंट किया जाता है pretty pictures, सुंदर तस्वीरों में, in paint में, in the previous classes, पिछली कक्षाओं में. Okay, या पहली कक्षाओं में. You have learned how to draw and paint pretty pictures in paint in the previous classes. It's mean आप अपनी पिछली कक्षाओं में, और we can say also that आप अपनी पहली कक्षाओं में पेंट में सुंदर चित्र बनाना और पेंट करना सीख चुके हैं. ओके, कि पेंट में कैसे प्रीटी पिक्चर्स बनाई जाती है, सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, और उनमें कैसे पेंट किया जाता है. पेंट किया जाता है इट्स मीन उनमें कैसे कलर किया जाता है, रंग किया जाता है. ओके, you shall be learning the right text in different styles in this chapter. You shall be learning, आप सीखेंगे टू राइट टेक्स्ट को राइट करना इन डिफरेंट स्टाइल्स. इट मीन भिन्न भिन्न प्रकार के स्टाइल्स में. स्टाइल्स में होता है शैलियाँ. ओके, भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों में, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स में इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में. ओके, and students, in this chapter you shall be learning to write text in different styles. Okay, it's mean कि इस पार्ट में आप भिन्न भिन्न स्टाइल्स में, भिन्न भिन्न शैलियों में टेक्स्ट को लिखना सीखेंगे. ओके, at the same time you can be able to even play with pictures by flipping and rotating them. Okay, at the same time, और साथ ही you can the able, आप योग होंगे, आप सक्षम हो सकते हैं. ओके, यू कैन बी एबल, आप सक्षम हो सकते हैं, आप योग हो सकते हैं टू इवन प्ले. ओके, प्ले करने के लिए विथ पिक्चर्स के साथ में, चित्रों के साथ में, बाय फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग. ओके, फ्लिपिंग इट्स मीन डिलीट करना, हटाना, एंड रोटेटिंग इट्स मीन घुमाना. ओके, एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी एबल टू इवन प्ले विथ पिक्चर्स बाय फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग दम. इट्स मीन कि साथ ही साथ आप चित्रों को फ्लिप करके और रोटेट करके, इट्स मीन कि उसे डिलीट करके, ओके, उसे हटा के या उसे घुमा कर, रोटेट करके उसके साथ खेलने में सक्षम हो सकते हैं, उनके साथ खेलने के एबल हो सकते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ द रिबन इन पेंट. ओके, लुक एट मीन्स देखिए, द पिक्चर मीन्स चित्र ऑफ द रिबन का इन पेंट में. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ द रिबन इन पेंट. इट्स मीन पेंट में रिबन के चित्र को देखिए. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी
इट्स अ पिक्चर ऑफ अ रिबन इन पेंट एंड इट्स अ पेस्ट का ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड है, इमेज है, सेलेक्ट है, होम है, अनटाइटल पेंट है, व्यू है एंड स्टूडेंट्स लुक क्लियरली इट्स अ टैब्स. ओके, टैब्स है जहाँ पे हीरो है एंड इट्स अ टूल्स हैं एंड ब्रशेस हैं एंड शेप्स हैं जिसमें शेप्स के इंक्लूडेड सिलेंडर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ओके, स्क्वायर आते हैं, ओके, एंड साइज है, कलर है, ये आपके कलर बॉक्स है एंड एडिट कलर्स है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स इट्स अ ग्रुप, ये ग्रुप है और ये शेप का ग्रुप है और एक आपका टूल्स का ग्रुप है. क्लियर? एंड इट्स अ पिक्चर ऑफ अ रिबन इन पेंट, ये पेंट में एक रिबन का पिक्चर है. क्लियर? वी हैव ऑलरेडी रीड हाउ टू यूज कमांड्स इन द टूल्स ग्रुप एंड शेप्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. ओके, वी हैव ऑलरेडी रीड, हम पहले से ही रीड कर चुके, पहले ही पढ़ चुके हैं हाउ टू यूज कमांड्स, ये कमांड्स का प्रयोग कैसे करते हैं इन द टूल्स ग्रुप में एंड शेप्स ग्रुप में, ओके, ऑफ द होम टैब. इस मीन हियर द मीन ऑफ होम टैब दैट होम टैब के शेप्स ग्रुप में इट्स मीन आकृतियों के समूह में जिसमें शेप्स होते हैं, जिसमें सिलेंडर हो गया, सर्कल हो गया, ओके, रेक्टेंगल हो गया, कोन हो गया, तो जिसमें सारे शेप्स होते हैं ना, तो होम टैब के शेप्स ग्रुप में और टूल्स ग्रुप में कमांड्स का प्रयोग कैसे किया जाता है ये हम पहले ही सीख चुके हैं. ओके, तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि होम टैब के जो हमारा हो गया शेप्स ग्रुप हो गया या टैब जो हमारा सेकेंड नंबर ग्रुप टूल्स ग्रुप हो गया. ओके, तो इनमें कमांड्स का उपयोग कैसे करते हैं ये हम पहले ही सीख चुके हैं. एंड लेट अस रिकॉल द यूज ऑफ कमांड्स यू हैव लर्न. ओके, लेट अस रिकॉल, चलिए एक बार रिकॉल करते इट्स में रिवाइज करते, एक बार फिर से याद करते द यूज ऑफ कमांड्स के प्रयोगों को यू हैव लर्न, जो आप लर्न कर चुके, सीख चुके हैं. ओके, लेट अस रिकॉल द यूज ऑफ कमांड्स यू हैव लर्न. इट्स मीन कि चलिए एक बार कमांड्स के उपयोगों को एक बार सीखते हैं. ओके, इनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से दोहराते हैं जो आप सीख चुके हैं. ओके, और वी कैन से आल्सो दैट, आइए हम कमांड्स के उपयोगों को रिकॉल करते हैं, उन्हें फिर से पढ़ते हैं जो आप सीख चुके हैं, जिन्हें आप पढ़ चुके हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स टर्न योर पेज फॉरवर्ड and let's see page number 30. Okay, and we have finished our first number topic introduction and now we are going to learn that how can we draw Diwali scene on a computer. Okay, so let's see how to draw Diwali scene. It's mean कि एक दिवाली सीन को कैसे बनाया जाता है. ओके, लेट अस ड्रॉ this image using some previously learnt commands and also learnt some new commands. In order to draw Diwali scene, the following steps are to be taken. Okay, let us draw this image. Okay, चलिए इस इमेज को ड्रॉ करते, इस चित्र को बनाते. ओके, ये जो इमेज है ना, इस इमेज की बात कर रहे हैं. ओके, एंड यूजिंग सम प्रीवियसली लर्न्ड कमांड्स. ओके, कुछ उन कमांड्स का प्रयोग करके जो हम पहले सीख चुके हैं. ओके, एंड आल्सो लर्न सम न्यू कमांड्स, और उन कमांड्स का उपयोग करेंगे जो हमने न्यू सीखेंगे. ओके, कुछ उन कमांड्स का यूज़ करेंगे जिनको हम पहले सीख चुके हैं एंड आल्सो लर्न सम न्यू कमांड्स, और कुछ नए कमांड्स के बारे में सीखेंगे, उनका उपयोग करेंगे इस दिवाली सीन को ड्रॉ करने के लिए. इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिवाली सीन, ऑर्डर में, क्रम में इस दिवाली के सीन को बनाने के लिए दी फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन. ओके, ये जो निम्नलिखित स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स, निम्नलिखित जो स्टेप्स है, चरण है, इनको हम फॉलो करेंगे. ओके, एंड स्टूडेंट्स ऑर्डर में ड्रॉ करने का मीन है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्टली वी विल मेक दिया एंड आफ्टर इट फिरकी एंड लास्ट कैंडल. ओके, तो स्टूडेंट्स ड्रॉ में ऑर्डर में इस दिवाली सीन को कंप्यूटर पे ड्रॉ करने के लिए हम इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे. क्लियर? So students, let's see first number step to draw Diwali scene on a computer. Students, so first number step is click the home tab. Okay, तो students फर्स्टली क्या करेंगे, कंप्यूटर पे एक दिवाली सीन को मेक करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट योर सेकंड नंबर स्टेप इज सेलेक्ट द ब्रश फ्रॉम ब्रशेस एंड ड्रॉ दिया एज साउंड. ओके, तो आप क्या करेंगे सेकंड नंबर स्टेप पे कि ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ब्रशेस से, जो हमारा ब्रशेस था ना. ओके, तो ब्रशेस से हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश को चुनेंगे एंड ड्रॉ दिया, और दिया ड्रॉ करेंगे, दिया बनाएंगे एज सोन, जैसे कि प्रदर्शित किया गया. एंड स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर स्टेप इज ड्रॉ द फिरकी यूजिंग ब्रश. ओके, तो हम ब्रश का यूज करके फिरकी ड्रॉ करेंगे, फिरकी बनाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर स्टेप वाज क्लिक द होम टैब. सबसे पहले हमने होम टैब पर क्लिक किया. ओके, एंड स्टूडेंट्स इट्स योर सेकंड नंबर स्टेप ड्रॉ दिया, हमने दिया को ड्रॉ किया, दिया बनाया. एंड सेकंड नंबर स्टेप स्टूडेंट्स ड्रॉ फिरकी विद यूज ऑफ ब्रश का यूज करके हमने फिरकी ड्रॉ किया. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स इट्स योर थर्ड नंबर स्टेप. ओके, थर्ड नंबर स्टेप पे क्या किया आपने कि आपने फिरकी को ड्रॉ किया ब्रश का यूज करके. एंड स्टूडेंट्स इट्स योर फोर नंबर स्टेप स्टूडेंट क्या किया कि क्लिक फिल विथ कलर. ओके, तो हमने क्या किया, फिल विथ कलर जो हमारा ऑप्शन था उस पर हमने अपने इस ऑप्शन पे फिल विथ कलर ऑप्शन पे क्लिक किया, फोर नंबर स्टेप पे. एंड
स्टूडेंट्स आफ्टर इट 5 नंबर स्टेप पे क्या किया कि कलर द दिया एंड फिरकी, कि हमने जो फिरकी थी और जो दिया ड्रॉ किया था उस पर कलर किया. ओके सो स्टूडेंट टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस पेज नंबर 31. लेट्स सी स्टेप नंबर 4. योर स्टेप नंबर 4 इज क्लिक फिल विथ कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप. ओके टूल्स ग्रुप से जो हमारा ऑप्शन था फिल विथ कलर का, उस पर हमने क्लिक किया. ओके एंड स्टूडेंट्स योर 5 नंबर स्टेप इज सिलेक्ट कलर्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम कलर्स ग्रुप एंड फिल कलर्स एज सून. ओके तो क्या किया कि 5 नंबर स्टेप पे आपने कलर्स को सिलेक्ट किए, रंगों को चुना. ओके कलर ग्रुप से जो हमारा कलर ग्रुप था उससे हमने कलर्स को सिलेक्ट किया, अपनी चॉइस के कलर्स को, अपनी पसंदीदा कलरों को चुना एंड फिल कलर एज साउंड, और रंग भरे जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है. ओके नाउ ड्रॉ द कैंडल. ओके चलिए अब एक कैंडल को ड्रॉ करेंगे, एक मोमबत्ती बनाएंगे इस दिवाली सीन पर. ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स सी 6 नंबर स्टेप. योर 6 नंबर स्टेप इज ड्रॉ कैंडल यूजिंग रेक्टेंगल टूल कलर इट. ओके तो क्या किया कि हमने रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके, ओके रेक्टेंगल मीन्स होता है आयताकार, तो जो हम रेक्टेंगल टूल का था उसका उपयोग करके हमने कैंडल ड्रॉ की, मोमबत्ती बनाई एंड कलर इट. ओके और उस पर करके कलर किया, रंग भरा. स्टेप नंबर 7 इज ड्रॉ गिफ्ट्स यूजिंग रेक्टेंगल एंड पेंसिल टूल. तो स्टूडेंट 7 नंबर स्टेप पे हमने रेक्टेंगल टूल का ही यूज़ करके और पेंसिल टूल का यूज़ करके गिफ्ट्स बनाए. ओके गिफ्ट्स मीन्स होता है उपहार बनाए. ओके एंड स्टूडेंट्स वो 8 नंबर स्टेप इज कलर गिफ्ट्स फ्रॉम फिल विथ कलर. तो हमने फिल विथ कलर से अगेन क्या किया, कलर किए. ओके फिल विथ कलर ऑप्शन को फिर से चूज़ किया और इसे कलर्स लेके हमने गिफ्ट्स पे कलर किया. ओके सो लेट्स सी इट्स 6 नंबर स्टेप ड्रॉ कैंडल यूजिंग द टूल कलर. तो हमने रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके कैंडल ड्रॉ की. ओके एंड इस पर कलर किया. ड्रॉ गिफ्ट्स यूजिंग लाइन एंड पेंसिल टूल. ओके तो लाइन का और पेंसिल टूल का यूज़ करके गिफ्ट्स ड्रॉ किए. ओके गिफ्ट्स बनाए. क्लियर एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी 8 नंबर स्टेप. इट्स 8 नंबर स्टेप कलर द कैंडल एंड गिफ्ट्स. ओके तो जो कैंडल थी उस पर हमने कलर किया एंड गिफ्ट्स पे कलर किया. क्लियर सो स्टूडेंट टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस पेज नंबर 32. ओके लेट्स सी नाउ लेट अस ड्रॉ कॉल आउट. ओके अब नाउ मीन्स अब लेट अस चलिए ड्रॉ कॉल आउट. एक कॉल आउट को हम ड्रॉ करते हैं. चलिए एक कॉल आउट को ड्रॉ करते, एक कॉल आउट को बनाते. ओके सो स्टूडेंट्स 9 नंबर स्टेप इज सिलेक्ट क्लाउड कॉल आउट फ्रॉम शेप्स ग्रुप. तो शेप्स ग्रुप से आकृतियों के समूह से क्लाउड कॉल आउट को सिलेक्ट किया 9 नंबर स्टेप पे. एंड स्टूडेंट्स 10 नंबर स्टेप इज ड्रैग टू ड्रॉ द कॉल आउट एंड प्लेस इट अबव पिक्चर्स. ओके तो स्टूडेंट्स क्या किया, हमने जो कॉल आउट था उसको ड्रॉ करके ड्रैग करने के लिए ड्रॉ किया. ओके एंड प्लेस इट अबव पिक्चर, और इसे प्लीज कैसे रखा अबव पिक्चर्स. इट्स मीन कि जो पिक्चर्स थी ना हमारी उसके ऊपर हमने इसे रखा. ओके इट्स योर 9 नंबर स्टेप क्लिक क्लाउड कॉल आउट. ओके तो हमने ये जो क्लाउड कॉल आउट था उस पर क्लिक किया. ओके एंड 10 नंबर स्टेप इज ड्रैग द कॉल आउट. जो कॉल आउट था उसे ड्रैग किया. ओके अबव पिक्चर्स, जो हमारी पिक्चर्स है उसके अबव, उसके ऊपर. क्लियर नाउ इंसर्ट टेक्स्ट इन द कॉल आउट. ओके चलिए अब इस कॉल आउट पे हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं. ओके सो स्टूडेंट योर 11 नंबर स्टेप इज क्लिक टेक्स्ट फ्रॉम टूल्स ग्रुप. ओके तो जो हमारा टूल्स ग्रुप था उस पर हमने क्या किया, उससे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया. ओके एंड स्टूडेंट्स इट्स अ साइन ऑफ टेक्स्ट का ये साइन होता है ए जैसा होता है ना, तो इसी पे हमने इस टूल्स ग्रुप से हमें इसी टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया. एंड स्टूडेंट्स और 10 नंबर स्टेप इज ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड द क्लाउड कॉल आउट. ओके तो स्टूडेंट्स ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके इनसाइड द क्लाउड कॉल आउट. तो क्लाउड कॉल आउट के इनसाइड पे, उसके अंदर की वो जो एक टेक्स्ट बॉक्स था ना उस पर हमने उसे ड्रॉ किया ड्रैग करने के लिए. एंड लुक एट द न्यू टेक्स्ट टैब. अब इस न्यू टेक्स्ट टैब को देखिए, दैट अपीयर्स जो दिखाई देता है ऑन द रिबन पर व्हेन यू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके जब आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, जब आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया तो एक न्यू टेक्स्ट टैब दिखाई देता है. ओके रिबन पर. क्लियर so student let's see it's your 11 number step click text पे click किया. okay and students it's your 12 number step drag a text box inside call out. okay call out के inside पे एक text box को हमने drag किया. okay so students let's see next click here to change font of your text. okay तो अगर आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके क्लिक हियर टू चेंज फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट. अपने टेक्स्ट के फंट को चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट टूल्स का. ओके एंड स्टूडेंट्स क्लिक टू चेंज साइज ऑफ टेक्स्ट. ओके तो आप अपने टेक्स्ट के साइज को चेंज करने के लिए, उसके आकार को बदलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. ओके क्लिक टू चेंज पे क्लिक करेंगे. ओके साइज ऑफ टेक्स्ट के साइज को बदलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. एंड स्टूडेंट्स क्लिक टू मेक योर टेक्स्ट बोल्ड. अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए ओके आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं. ओके बी से जो है बहुत डार्क बी जो राइट डाउन है उस पर क्लिक करेंगे. एंड क्लिक टू मेक योर टेक्स्ट इटैलिक. अपने टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, इटैलिक में राइट डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस पर क्लिक करेंगे. आई टाइप का है ना
ओके एंड स्टूडेंट्स क्लिक टू अंडरलाइन योर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, रेखांकित करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके यूके ब्लू अंडरलाइन है ना, उसी पे। एंड स्टूडेंट्स क्लिक टू चूज कलर ऑफ योर टेक्स्ट। ओके अपने टेक्स्ट को कलर करने के लिए आप क्या करेंगे, कलर को चूज कर सकते हैं इस कलर ग्रुप से। ओके एंड स्टूडेंट्स वी हैव read that how can we click to it, how can we change our text, अपनी टेक्स्ट के स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ कैन वी टेक्स्ट टाइप इटैलिक में कैसे टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड look at this page number 33. okay let's see 13 number step. Students, or 13 number step is choose color, size, font, style of your text from the text tab. text tab से क्या करेंगे कि अपने टेक्स्ट को अपनी टेक्स्ट को कलर करने के लिए, इसे साइज करने के लिए या फंट करने के लिए, स्टाइल के लिए। ओके तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टैब से चूज करेंगे। चूज कलर हम क्या करेंगे, रंगों को चुनेंगे, साइज आकार को चुनेंगे, फंट को चूज करेंगे, स्टाइल को चूज करेंगे ऑफ योर टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट टैब। ओके तो अपने टेक्स्ट टैब से अपनी टेक्स्ट के लिए कलर, साइज, फंट और स्टाइल को चूज करेंगे। एंड स्टूडेंट योर 14 नंबर स्टेप इज टाइप योर टेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट को हम टाइप करेंगे। ओके विच वी वांट टू टाइप। ओके जब हम टाइप करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे। स्टूडेंट्स इट्स योर 13 नंबर स्टेप, चूज फंट, साइज एंड कलर। ओके तो हमने क्या किया, फंट, साइज और कलर को यहाँ से चूज किया। एंड स्टूडेंट्स टाइप द टेक्स्ट, इट्स योर 14 नंबर स्टेप। 14 नंबर स्टेप पे हमने, क्योंकि स्टूडेंट वी आर ड्राइंग दिवाली सीन। ओके दिवाली सीन को ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स टाइप द टेक्स्ट हैप्पी दिवाली। ओके तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को टाइप किया है हैप्पी दिवाली टेक्स्ट टाइप किया है। ओके and so let's see step number 15. Students, so 15 number step is fill a color in the background. Okay using fill with color. Okay to complete your Diwali picture. अपनी दिवाली पिक्चर को पूरा करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए फिल विथ कलर से क्या करेंगे, कलर लेंगे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। बैकग्राउंड इट्स इन पृष्ठभूमि। ओके जो हमारी पिक्चर्स का जो बैकग्राउंड है ना, उस पर कलर करने के लिए हमने क्या किया, इस दिवाली सीन को, इस दिवाली की पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमने फिल विथ कलर से कलर लिए बैकग्राउंड पे कलर करने के लिए। ओके फिल अ कलर, रंगों को भरी इन द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में, यूजिंग फिल विथ कलर का उपयोग करके टू कंप्लीट योर दिवाली पिक्चर, अपनी दिवाली पिक्चर को, अपनी दिवाली के दृश्य को पूरा करने के लिए। ओके स्टूडेंट लेट्स सी इट्स ऑफ 15 नंबर स्टेप and it's your last step to draw Diwali scene on a computer. Okay so look clearly students, so 15 number step is fill color in the background. लास्ट में हमने क्या किया कि जो हमारा बैकग्राउंड था उसमें हमने कलर फिल किया। क्लियर एंड स्टूडेंट्स at finally we are completing this Diwali scene on a computer. Okay हमने कंप्यूटर पे इस दिवाली सीन को कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ओके दिया है, फिरकी है, कैंडल है, गिफ्ट्स है। ओके एंड हमने टेक्स्ट टाइप किया है हैप्पी दिवाली। ओके एंड स्टूडेंट्स और इसके बैकग्राउंड पे हमने पिंक कलर किया हुआ है। क्लियर सो स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दैट हाउ कैन वी ड्रॉ दिवाली सीन ऑन अ कंप्यूटर एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक and you have also learned that how can you draw Diwali scene on a computer. Okay so students now we are going to read and solve exercise B of this chapter 3 in our computer book. Okay so all students turn your page forward and look at this page number 40. Let's exercise C. Students so exercise C is multiple choice questions. Okay tick the correct option, it means सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। Students so first number question is fill with color option is present in blank group full stop. Okay it's mean fill with color का ऑप्शन, फिल विथ कलर का विकल्प, इट मीन्स है प्रेजेंट में उपस्थित, इन मीन्स में ब्लैंक ग्रुप में समूह। ओके सो स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर ऑप्शन। ओके टूल्स। ओके सो स्टूडेंट्स टेक इन दिस second number box against this second number option tools and write down tools in this first number blank TOOLS tools. Okay and then your sentence become fill with color option is present in tools groups. Okay fill with the color option in present in tools group, it's mean कि रंग भरने का जो ऑप्शन होता है, फिल विथ कलर का जो ऑप्शन होता है, ये टूल्स ग्रुप में प्रेजेंट होता है, टूल्स ग्रुप में उपस्थित होता है। क्लियर सो स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकंड नंबर। स्टूडेंट्स और सेकंड नंबर क्वेश्चन इज क्रॉप एंड इमेज मीन्स टू ब्लैंक फुल स्टॉप। ओके एंड क्रॉप एंड इमेज मीन्स होता है, इट्स मीन कि एक इमेज को क्रॉप करने का मतलब होता है। ओके सो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज रिसाइज। रिसाइज मीन्स स्टूडेंट्स होता है कि साइज को चेंज करना, उसे बदलना। ओके
and B number option is cut off, its mean होता है काटना, and C number option is select, its mean होता है चुनना. Okay, so students we have learned that crop an image means to cut off. Okay, so students tick in this second number box against this B number option cut off, and also write down cut off in this second number blank, and then your sentence become crop an image means to कट ऑफ. इट्स मीन कि इमेज को क्रॉप करने का मीन होता है कट ऑफ, उसे काटना. ओके, एंड स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज देयर आर ब्लैंक ऑप्शंस टू सेट योर पिक्चर्स एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. इट्स मीन कि देयर आर ऑप्शन. ओके, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन होते, विकल्प होते टू सेट योर पिक्चर्स, अपनी पिक्चर को सेट करने के लिए. ओके, एज अ डेस्कटॉप. ओके, एक डेस्कटॉप की तरह बैकग्राउंड. ओके, एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. तो एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह अपनी पिक्चर को सेट करने के लिए कितने ऑप्शन होते हैं, कितने विकल्प होते हैं. ओके, so students first number option is 4. Okay, it's mean 4. B number option is 2, it's mean 2, and C number option is 3. Okay, so students your correct number answer is C number option. Okay, C number is your correct answer, it's your correct option. So students tick in this third number box against this C number option, and also write down here 3 in this third number blank, and then your sentence become there are 3 options to set your pictures as a desktop background. Okay, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 विकल्प होते हैं. ओके, आप अपनी पिक्चर्स को जिसमें डेस्कटॉप की बैकग्राउंड की तरह सेट कर सकते हैं. क्लियर? स्टूडेंट लेट्स सी 4 नंबर question, which is last question of this exercise. So students, so 4 number question is which of the following options shows an image upside down. Okay, which of the following options, it's mean निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प shows means प्रदर्शित करता है, and image means एक चीज, upside down it's mean नीचे की तरफ है. Okay, which of the following options shows an image upside down, it's mean निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये प्रदर्शित करता है कि एक इमेज upside down है. Okay, so students, our first number option is flip horizontal. Okay, second number option is flip vertical, and students your last C number option is select. Select means what is chunna. Okay, so students it's a false. Okay, and students your first number option is flip horizontal, and flip horizontal option gives a mirror image, ये mirror image को देता है. Okay, so it's also a false option. And students your B number option is flip vertical, and it's your correct option. So all students tick in this second number box against this B number option flip vertical, because it's a correct option, because flip vertical option shows an image upside down. Okay, एक image को upside down flip vertical show करता है. Clear? So students, we have read and solved this exercise C of chapter 3, and I hope you must have understood all these questions of this exercise C of chapter 3. You have no problem in any answer of this exercise C. Okay, so students, today's classwork is that note down exercise C, which is page number 40 of this chapter 3 in your fair computer notebook with your best handwriting. It's a today's classwork. And students, your homework is that learn exercise C, which is page number 40 of this chapter 3 from your fair computer notebook. It's a today's homework, and I hope you have no problem for learning work, because I've explained all questions of this exercise C. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise C, which is page number 40 of this chapter 3 in your fair computer notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.